Good morning to all of you. We are now starting a new subject, international trade. It's a very interesting subject and very important. If you attending a subjective exam, then we can say you can very easily conduct it. But from viewpoint of MCQ, this subject would be helpful in attending your exam only when if you learn it principally. And that is why I say that on one side it's a very easiest and on other side it's a very toughest subject. So now today we start this subject, international trade. It's a syllabus point of view. There are two topics: rationale for international trade, that means basis for international trade, that means why do the trade make nation, means why do the nation make international trade, we can say why do nation do the trade, and what are the distinctions between internal trade and international trade. Internal trade means between within the trade, internal trade means within nation, and international trade means between nation. It this chapter's weightage is 5 to 7 marks, but in the case of theoretical point of view, if we discuss about the classical theory, then there may be a full questions to be asked. There are three questions: absolute cost advantages, comparative cost advantages, and offer curve or reciprocal demand curve. Means doctrine of reciprocal demand. We can also say doctrine of reciprocal demand. From this three question, one question must be asked in your exam. So from subjective point of view, I earlier said that it's a very easiest, but from MCQ point of view, it is the toughest subject. So please, whatever I discuss, carefully learn, carefully grasp, and be serious. Our first questions: what are the bases of the international trade? Means why the nations do the trade between them? Why do a nation trade among each other? What is the reason? What are the benefits? What are the we can say conclusions that create a trade between the two nations? ऐसा क्या है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसी कौन सी मजबूरी है जो दो नेशन को आपस में ट्रेड करना पड़ता है? तो ये क्वेश्चंस, व्हाई डू द नेशन ट्रेड, तो उसके तीन रीजन यहां दिए हैं. एक तो है लिमिटेड प्रोडक्शन कैपेसिटी. कभी कभी क्या होता है कि नेशन में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है लेकिन प्रोडक्शन कैपेसिटी कम है. उसके कई सारे रीज़न होते हैं कि प्रोडक्शन की कैपेसिटी क्यों कम है, उसके रीजंस कई सारे होते हैं, वो हम बाद में देखेंगे. लेकिन एक रीज़न ये है लिमिटेड प्रोडक्शन कैपेसिटी. दूसरा रीज़न ये भी है लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज. दैट मीन्स क्या, नेचुरल रिसोर्सेज जो हमको गॉड के पास से मिलती है, वो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो वेरी अनइवन है. हम अनफेयर भी बोल सकते हैं. से फॉर द एग्जांपल, हमारे यहाँ जो है वो ओपेक कंट्रीज में नहीं है, सपोज ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, सपोज कि
हम ऐसा बोल सकते हैं यूएसए में नहीं है, यूके में नहीं है, वहां जो है वो यहाँ नहीं है, कभी कभी कई सारे उसके बाइफर्केशन है। तो लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेस। और तीसरा रीजन बताया गया है अवेलेबिलिटी ऑफ कॉस्ट एडवांटेजेस। कभी कभी क्या होता है कि कोई प्रोडक्ट का प्रोडक्शन की कॉस्ट कोई एक नेशन में ज्यादा आती है तो दूसरी नेशन में कम आती है। तो अगर हम कॉस्ट का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो हम वही प्रोडक्ट करेंगे, वही प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करेंगे जिसकी प्रोडक्शन कॉस्ट हमारे वहाँ कम आती हो और दूसरे कंट्री में ज़्यादा आती हो। तो ये प्रोडक्शन कॉस्ट की एडवांटेजेस क्यों है, तो उसका भी इनडायरेक्टली जो रीज़न जुड़ा हुआ है वो नेचुरल रिसोर्सेज के साथ और प्रोडक्शन कैपेसिटी के साथ है। अगर आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी अच्छी है, आप अच्छे बल्क में प्रोडक्शन कर सकते हो, आपके पास इतनी कैपिटल अवेलेबिलिटी है, इतने पॉपुलेशन है, तो स्वाभाविक है कि आपकी कॉस्ट कम होगी। लेकिन आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम है, नेचुरल रिसोर्सेज लेस अवेलेबिलिटी है, तो स्वाभाविक है कि आपकी कॉस्ट ज़्यादा होगी। So the first of all, the first reason we discussed, why do the trade make nation? Why do the nation make a trade? Do the trade? The first reason is the limited production capacity. A country cannot produce all the goods and services within a country. कोई एक कंट्री ऐसा बोले कि हम सभी आइटम का प्रोडक्शन करेंगे तो यू आर रॉन्ग। सपोज कि हम बात करें तो यूएई, यूनाइटेड अरेबियन कंट्रीज, यूएई, यहाँ आप देखो तो कोई भी आइटम का उत्पादन नहीं होता है। ये यूनाइटेड अरेबियन कंट्रीज में कौन सा कंट्री आएगा? शारजा आएगा, अबू धाबी आएगा, दुबई आएगा, ये सब यूएई में आएगा। तो यहाँ ये जो कंट्रीज है वो हम ऐसा बोल सकते हैं सुई का भी प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, इवन छोटी सी सुई का भी प्रोडक्शन नहीं कर, लेकिन यहाँ उनके पास जो क्रूड ऑयल है वो बहुत है। तो ये लोग क्या करते हैं, दूसरे देशों के पास क्रूड ऑयल नहीं है तो उनको बोलेंगे आप हमको ये दो, हम आपको ये देंगे, हमारे पास क्रूड ऑयल है तो हम उसका रिफाइन करके आपको पेट्रोल ऑयल जो भी है वो देंगे, आप इसके बदले में हमें जो चाहिए वो दे। तो all the country cannot produce all the goods and services, so it cannot satisfy all the needs of the people, means no one country becomes self sufficient. कोई कंट्री ऐसी नहीं है कि जो पूरी सेल्फ सफिशिएंट है। हम ऐसा बोल सकते हैं, हम ऐसा गर्व ले सकते हैं, वी टेक ए प्राउड ऑन आवर कंट्री ऑफ एज इंडिया, दैट इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट। इंडिया में ऐसी हर एक पॉसिबिलिटी है जो हर एक देश में जो उत्पादन होता है तो उसका हम एक अल्टरनेटिव हमारे देश में प्रोडक्शन कर सकते हैं और हमारे देश की ही आइटम हम यूज कर सकते हैं। ऐसा इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी है, अवेलेबिलिटी है। तो टू सेटिस्फाई द वेराइटीज ऑफ द नीड्स ऑफ द पीपल, to satisfy the varieties of the need of the people, it must import certain goods from the other country. अगर आपको वो सेटिस्फाइड करना है तो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। हमारे इंडिया में ऐसी सभी संभावना है कि जो हम हर एक प्रोडक्ट को अपने यहाँ उत्पादन कर सकते हैं। सपोज कि हम बात करें तो ऑयल, तो हमारे देश में इतना ऑयल नहीं है लेकिन हमारे पास सनशाइन है, उसका बहुत ज़्यादा पार्ट है यहाँ। तो हम सपोज कि पेट्रोल की जगह हम इलेक्ट्रिक मोटर का उत्पादन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर का उत्पादन कर सकते हैं। ऐसे हमारे पास कई सारे ऑप्शंस है। मैं ऐसा बता रहा हूँ, जितनी तकलीफ दूसरे देशों के पास है इतनी तकलीफ हमारे देश में नहीं है। लेकिन हमारे देश में एक बेसिक, हम ऐसा बोल सकते हैं कि बेसिक डिसएडवांटेजेस क्या है, हमारा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और हमारे देश को लोगों ने खाली कर दिया है पैसों से। एक जो सोने की चिड़िया बोलते थे हम, आज वो कुछ नहीं है क्योंकि सभी लोग लूट के चले गए। अगर आप हिस्ट्री में जाए तो आपको पता चले कि हमारे देश में क्या था और क्या लूट के चले गए, वो लोग कितना ले गए, आप बिलीव नहीं करोगे। तो इसीलिए आज हमारी कंट्री फेस कर रही है ये जो प्रॉब्लम्स है वो, वरना हमको कहीं भी दिक्कत नहीं थी।
whatever, we don't discuss in details about that, we just come to the point. Second reason is the limited natural resources. The natural resources, climate conditions, labor, capital resources, टेक्निकल कैपेसिटीज एक्सेट्रा आर द डिफरेंस इन द डिफरेंट कंट्री. सपोज कि हम टेक्निकल की बात करें, टेक्निकल कैपेसिटी की बात करें, तो आज हमारे यहाँ प्रधानमंत्री कौशल्य योजना चल रही है. तो वो क्या है, लोगों को टेक्निकल मैटर्स में परफेक्ट बनाने की दौड़ है. लोगों को टेक्निकल जो मैटर है वो सिखाने की दौड़ है कि आप लोग थोड़ा टेक्नोलॉजी से जुड़े, टेक्नोलॉजी का यूज करें. हमारे यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज जितना चाहिए इतना है, ऐसा नहीं है कि नहीं है. क्लाइमेट कंडीशन भी जैसे फॉरेन में है ऐसा नहीं है. सपोज कि आपने अभी पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में या तो न्यूज़ में चैनल में देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया में आग लग गई. उसके जो फॉरेस्ट है उसमें 50 लाख से ज़्यादा उसके जो बर्ड थे वो उसमें जल गए. कभी भी उसमें यहाँ आग लग जाती है. सपोज कि आप अमेरिका की बात करो तो वहाँ भी ऐसा क्लाइमेट है, लेकिन हमारे वहाँ इतना गंदा क्लाइमेट नहीं है. अभी भी उसमें बहुत सारे चांसेस है कि जो है उसमें हम सेव कर सकते हैं उसको. तो नेचुरल रिसोर्सेज, क्लाइमेट कंडीशंस, लेबर एंड कैपिटल रिसोर्सेज. सपोज कि हमारे यहाँ लेबर ज़्यादा है लेकिन कैपिटल रिसोर्सेज कम है. जब फॉरेन कंट्रीज की बात करें तो उसमें कैपिटल ज़्यादा है लेकिन लेबर कम से. तो ऐसे कई सारे रीजंस है. तो यहाँ आपको ये बता रहे हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज, क्लाइमेट कंडीशंस, लेबर एंड कैपिटल रिसोर्सेज, टेक्निकल कैपेसिटी एक्सेट्रा, डिफरेंस इन द डिफरेंट कंट्री. फर्दर इतना ही नहीं, और क्या बता रहे हैं, फर्दर द रिसोर्सेज ऑफ कंट्रीज आर मोर सुटेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन गुड्स. कभी कभी क्या होता है कि आपको सपोज कि कोई प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए कुछ रिसोर्सेज चाहिए, तो वो रिसोर्सेज वो कंट्री को ज़्यादा सूट करते हैं. से फॉर द एग्जांपल हम ओपेक कंट्रीज की बात करें, जो ओपेक में आती है, ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो है, तो ओपेक कंट्री की बात करें तो वहाँ इतना सारा ऑयल का नेचुरल रिसोर्सेज है कि उनको उतना उसका 1% भी उनके वहाँ यूज नहीं होता है. तो वो क्या करते हैं, तो दूसरे वर्ल्ड में जितनी कंट्रीज है वहाँ इतनी नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, तो वो लोग अपना जो 99% ज़्यादा है वो दूसरे कंट्रीज में बेचते हैं. इसीलिए तो मैंने आपको बताया कि ये जो ओपेक वाले जो कंट्रीज है वो कंट्रीज बहुत रिच है. क्यों, तो उसका रीज़न यही है. सपोज कि आप दुबई जाओ तो दुबई में बढ़िया से बढ़िया कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बढ़िया से बढ़िया उसका जो उन लोगों ने जो डेवलपमेंट किया है वो किसी और देश में नहीं है. क्यों, तो उनकी इनकम ही इतनी है. अच्छा, उनकी इनकम क्यों इतनी है, तो उसका रीजन उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज ही बहुत ज़्यादा है. तो फर्दर द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्रीज आर मोर सुटेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन गुड. अगर आपको कोई गुड्स के, सपोज कि हम ऐसे बात करें कि हमारे यहाँ वेजिटेरियन बहुत है इंडिया में, नॉन वेजिटेरियन कम है. वेजिटेरियन हमारे यहाँ ज़्यादा है. तो वेजिटेरियन ज़्यादा क्यों है, तो हमारे यहाँ फूड का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है जो दूसरे कंट्रीज में नहीं होता है. सपोज कि ऑस्ट्रेलिया है तो वहाँ होता है, लेकिन ऐसे बहुत कम देश है कि जहाँ जो बहुत कम देश है जो एग्रीकल्चरिस्ट कंट्रीज है, तो उनका जो क्लाइमेट कंडीशन है वो वहाँ के सुटेबल है. उनकी जो रिसोर्सेज है, लैंड है, उसका क्लाइमेट कंडीशन, रिसोर्सेज का मतलब क्या, ये जो क्लाइमेट कंडीशन आएगा, लैंड आएगा, वो सब नेचुरल रिसोर्सेज आएगा, वो सब रिसोर्सेज में आएगा, तो वो सुटेबल है. सो दे कैन प्रोड्यूस मोर दिस गुड्स एट द लोवेस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. जैसे हम बात करें कि हमारे जो आम है, मैंगोज है, वो इसकी जो क्वालिटीज़ है वो दूसरी कंट्री में नहीं मिलती है. वैसे हम बात करें तो आलमंड, तो ये जो कश्मीर में जो होते हैं वो इसकी उसकी जो क्वालिटीज़ है वो दूसरी जगह नहीं मिलती है. तो ऐसे कई सारे रीज़न है. तो उसके यहाँ एग्जांपल दिए गए हैं. सपोज कि जापान कैन प्रोड्यूस ऑटोमोबाइल गुड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बिकॉज वहाँ जापान की टेक्नोलॉजी बहुत आगे है. हम जो थिंकिंग नहीं करते हैं वो लोग प्रोडक्शन कर देते हैं, इतने आगे है.
तो जापान कैन प्रोड्यूस ऑटोमोबाइल गुड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एट कंपैरेटिवली लोअर कॉस्ट। सपोज कि आपने पढ़ा भी नहीं होगा, शायद आपको मालूम भी नहीं होगा, लेकिन ऐसा टीवी जापान वालों ने प्रोड्यूस कर दिया है कि अगर उसको हम न्यूज़पेपर के जैसे फोल्ड करके हाथ में लेके घूम सकते हैं। अब आपको ऐसा लगेगा सर ऐसा हो सकता है, अरे हो सकता नहीं है, ये मैं 10 साल के पहले की बात, उन लोगों ने उसका पेटेंट राइट ले रखा है, मार्केट में नहीं लाया, बट इट्स पॉसिबल। जापान वालों ने अभी से बोल दिया है कि 2040 के बाद हमारे यहाँ कोई भी कार पेट्रोल से और डीजल से नहीं चलेगी, सब भी कार इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगी। तो जापान की टेक्नोलॉजी बहुत आगे है। जापान कैन प्रोड्यूस ऑटोमोबाइल गुड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एट कंपैरेटिवली लोअर कॉस्ट, सो इट हैज स्पेशलाइज्ड इन द प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। इन एक्सचेंज ऑफ दिस गुड्स वो क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, उनके वहाँ जो नहीं है वो इंपोर्ट द अदर फ्रॉम द अदर कंट्रीज द अदर गुड्स। मलेशिया कैन प्रोड्यूस द रबर एंड पाम ऑयल। मलेशिया में वो बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है क्योंकि उसकी जो क्लाइमेट कंडीशन है वो उसके प्रोडक्शन के बरोबर है, एंड मोर एफिशिएंटली देन द अदर कंट्री कैन डू। और उसका थर्ड रीजन है एबिलिटी ऑफ कॉस्ट एडवांटेजेस। एबिलिटी ऑफ कॉस्ट एडवांटेजेस, next, availability of the cost advantages. Usually a country will specialize in the production of that commodity in which it has absolute or a comparative advantages. ये एब्सोल्यूट एडवांटेजेस और कंपैरेटिव एडवांटेजेस क्या है वो हम उसको नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ने ही वाले हैं। मीन्स अभी आप ऐसा समझो कि उसको एडवांटेजेस होगा, वो ही प्रोडक्ट वो प्रोडक्शन करेगा, मीन्स उसकी कॉस्ट कम होगी या उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज उस प्रोडक्ट के लिए बहुत चीपेस्ट अवेलेबल होगी, इजीली अवेलेबल होगी, तो वो ही कंपनी, तो वो कंट्री वही प्रोडक्ट का उत्पादन में स्पेशलाइजेशन रखेगी। इट विल एक्सपोर्ट इट्स सरप्लस। मैंने अभी ही आपको बताया कि वो अपने पास अपने लिए जो उसको रिक्वायरमेंट है वो रखेगी और बाकी का एक्सपोर्ट करेगी। इट विल एक्सपोर्ट इट्स सरप्लस प्रोडक्शन to other countries and will import that commodities in which it has no such advantages. Thus, international trade arises due to the cost advantages or the benefit or the gain. ये मेन रीजन है, समझो ऐसा, ये तीनों रीजन में मेन रीजन यही है। और ये रीजन कब होता है, तो जब ऊपर वाला जो दो रीजन, एक नेचुरल रिसोर्सेज और दूसरा उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी, अगर वो फेवरेबल होगा तो स्वाभाविक है उस प्रोडक्ट की कॉस्ट उसके वहाँ कैसी होगी, कम होगी। तो यहाँ एक एग्जांपल दिया है, फॉर एग्जांपल एज गिवन इन एग्जांपल पॉइंट नंबर 2, प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ जापान एंड मलेशिया लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रबर रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मीन्स जापान के लिए क्या है, इलेक्ट्रॉनिक, और मलेशिया के लिए क्या है, रबर। रिस्पेक्टिवली इज फार in excess as compared to their capacity to consume, means उसका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है ना वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। उसको जो रिक्वायरमेंट है इस कैपेसिटी टू कंज्यूम मीन्स कंजम्पशन से ज़्यादा वो लोग उत्पादन कर रहे हैं। सो बोथ कंट्रीज एक्सपोर्ट देयर गुड्स टू द अदर कंट्रीज एट द रिलेटिवली लोअर प्राइस। Thus, the cost advantages is the basis of international trade. If there is no benefits or gain from the trade, there will not be international trade. So अगर MCQ में वो लोग पूछे तो आपको बताना है cost advantages. Now causes of international trade means what give rise to the international trade. So international trade arise due to the difference in the price of the goods in the different country. दोनों कंट्री में जो प्राइस का डिफरेंस है उसीलिए इंटरनेशनल ट्रेड होता है। मीन्स हमारे वहाँ सपोज कि हम कोई आइटम का प्रोडक्शन करेंगे तो उसकी सपोज कि प्रोडक्ट ए है, समझ लो प्रोडक्ट ए है, उसका प्रोडक्शन कॉस्ट हमारे यहाँ 60 रुपीज़ है, लेकिन अगर हम फॉरेन से लाते हैं तो उसका प्रोडक्शन कॉस्ट 40 रुपीज़ है, तो बेटर है कि हम वहाँ से ही लाएंगे, इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो प्राइस डिफरेंस है। द प्राइस डिफरेंस क्यों होता है, तो दिस प्राइस डिफरेंस इज ड्यू टू
डिफरेंस इन द सप्लाई कंडीशन, डिफरेंस इन द डिमांड कंडीशन, या दोनों के लिए। मीन्स कभी कभी कोई कंट्री में क्या होता है कि सप्लाई कंडीशन बहुत ज़्यादा होता है, मीन्स उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो उनको जो चाहिए उससे ज़्यादा वो लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसके जो कंजम्पशन कैपेसिटी है उससे कई गुना ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, तो वहाँ का सप्लाई बहुत है। तो वो क्या करेंगे, अगर सेम ही प्रोडक्ट है तो वो बहुत बल्क में प्रोडक्शन करते हैं, तो स्वाभाविक है उसकी कॉस्ट कम आएगी। या तो डिफरेंस इन डिमांड कंडीशन, टेस्ट प्रेफरेंस, कभी कभी क्या होती है डिमांड कम होती है तो भी वहां ऐसा होता है, और द सम कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ मीन्स डिमांड भी कम है और सप्लाई कंडीशन भी चेंज है और डिमांड भी चेंज है। तो यहाँ आपको उसका डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ बताया गया है। तो पहले है डिफरेंट इन सप्लाई कंडीशन। डिफरेंट इन सप्लाई कंडीशन अराइज ड्यू टू द डिफरेंस इन द सप्लाई ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सप्लाई कहाँ से होगा, अगर आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज होगी तो ही आप प्रोडक्शन कर सकेंगे। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ओपेक में जो जो कंट्रीज आती है उसका सप्लाई ऑयल का ज़्यादा है। तो क्यों ज़्यादा है, उसका रीज़न क्या है, तो वहाँ नेचुरल रिसोर्सेज फेवरेबल है, उनके यहाँ उसके बहुत सारे भंडार है, बहुत सारी नेचुरल रिसोर्सेज है क्रूड ऑयल की। तो इसीलिए सपोज हम अफ्रीकन कंट्री की बात करें तो वहाँ गोल्ड की बहुत सारी माइंस आ रही, गोल्ड माइंस बहुत है, तो ये वहाँ गोल्ड का प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये सब रीजंस है। तो डिफरेंट इन सप्लाई कंडीशन अराइज ड्यू टू द डिफरेंट इन सप्लाई ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सप्लाई ज्यादा है तो नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा होनी चाहिए, और अकेला नेचुरल रिसोर्सेज क्या करेगा, लेबरर्स भी होना चाहिए और कैपिटल रिसोर्स भी होना चाहिए। अगर आप पूरा प्रोडक्शन लेबर से करेंगे तो प्रोडक्शन कम होगा, लेकिन थोड़ा ऑटोमेटिक रिसोर्सेज लाएंगे, ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी लाएंगे तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। आज हमारे देश में क्या है, हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज है, लेबर है, लेकिन कैपिटल नहीं है, इसीलिए गवर्नमेंट एफडीआई को वेलकम कर रही है। गवर्नमेंट ने कई सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो एफडीआई के लिए 100% ओपन कर दिए, मीन्स आप 100% हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ऐसा गवर्नमेंट ने बोला है। लेकिन क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज है। गवर्नमेंट ने बोला है हमारे यहाँ डिमांड है, डेमोक्रेसी है, डेमोग्राफी है, डेमोग्राफी मीन्स लेबरर्स है। हमारे कंट्री के 65% लोग 15 टू 59 ईयर्स के हैं, मीन्स ये जो है ना वो सबसे यंगेस्ट पीपल कहलाते हैं 15 टू 59। तो हमारे यहाँ 65% है, मीन्स हर एक लोगों को अगर नौकरी मिल जाती है, इनकम मिल जाती है, तो बहुत डिपेंडेंट पोर्शन सिर्फ 35% रहता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट लोगों अलग अलग कंट्री के लोगों को यहाँ वेलकम करती है, रेड कारपेट बिछाती है। क्यों कि आप लोग हमारे यहाँ आओ, हम आपके अनुसार जो भी लॉ है उसमें चेंज कर सकते हैं, अगर आप हमारे यहाँ आके हमारे एम्प्लॉयमेंट को अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर सकते हो। तो गवर्नमेंट ऐसा बोलती है। तो सप्लाई कंडीशन इज लेस ड्यू टू चेंज डिफरेंस ड्यू टू द सप्लाई नेचुरल रिसोर्सेज, लेबर, कैपिटल रिसोर्सेज, एफिशिएंसी, टेक्नोलॉजी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंस है। आपके यहाँ सपोज की पॉपुलेशन ज़्यादा है लेकिन लोग हेल्दी नहीं है, तो क्या करेंगे, तो हेल्थ कॉन्शियस भी होना चाहिए, तो एफिशिएंसी बढ़ेगी। आपके पास काम करने की कैपेसिटी तभी होगी जब आप हेल्दी होंगे। तो एफिशिएंसी, टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा, ये सब रीजन है डिफरेंस इन सप्लाई के। फॉर एग्जांपल अ लैंड अबांडन कंट्री लाइक हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के पास बहुत लैंड है, मे एक्सपोर्ट लैंड इंटेंसिव गुड्स लाइक राइस, व्हीट और रबर एक्सेट्रा। ऑस्ट्रेलिया एग्रीकल्चर कंट्री क्यों है, तो उसका वो लैंड अबांडन कंट्री है, तो वो बहुत सारा प्रोडक्शन कर सकती है। लेबर अबांडन कंट्री लाइक इंडिया, लाइक चाइना, तो मे एक्सपोर्ट लेबर इंटेंसिव गुड्स लाइक टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट एक्सेट्रा, ये सब लेबर इंटेंसिव गुड्स है। कंट्री विद अ लार्ज कैपिटल, जिसके पास कैपिटल ज़्यादा है, वो हाईली स्किल्ड लेबरर्स है एंड सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है, बहुत सी डेवलप्ड टेक्नोलॉजी है।
डिसेंट टेक्नोलॉजी है उसके पास, तो मे एक्सपोर्ट कैपिटल और स्किल और टेक्नोलॉजी इंटेंसिव गुड्स। ये जो हम अभी पढ़ा रहे हैं तो वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। तो फिर भी आप सपोज कि फॉरेन कंट्री में जाओ तो इससे अच्छा टेक्नोलॉजी वाला एजुकेशन मिल सकता है, तो क्योंकि वहां कैपिटल ज्यादा है। अभी हमारे कंट्री में देखने जाओ तो लोगों के पास जो स्टूडेंट्स है उसके पास कई लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है। जब वहाँ की बात करो तो हर एक लोगों के पास लैपटॉप तो कंपलसरी होता है। जैसे पढ़ने के लिए पेंसिल जरूरी होती है ना, वैसे ही वहाँ पढ़ने के लिए पहले लैपटॉप जरूरी होता है, उसके पास प्रिंटर जरूरी होता है। ये सब उसकी रिक्वायरमेंट है। तो sophisticated technology, a country with the large capital, highly skilled labor and sophisticated technology may export capital or skill or technology intensive goods, जिसके प्रोडक्शन के लिए टेक्नोलॉजी की जरूरत है, स्किल्ड पर्सन की जरूरत है, कैपिटल की जरूरत है, वो टाइप्स के प्रोडक्शन वो लोग ज्यादा करेंगे। एंड सर्विसेज लाइक कंप्यूटर्स, एरोप्लेन्स, न्यूक्लियर्स, वारशिप्स एटसेट्रा। तो डिफरेंट इन सप्लाई कंडीशन, जिसके पास नेचुरल रिसोर्सेज फेवरेबल है, जिसके पास जो फेवरेबल है उसके रिलेटेड जो प्रोडक्ट होती है वो ज़्यादा सप्लाई करेगा। सेकंड है डिफरेंट इन द डिमांड कंडीशन। ये सेकंड रीजन है। डिफरेंट इन द डिमांड कंडीशन अराइज ड्यू टू द डिफरेंट इन इनकम एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द पीपल। हम अपनी बात करें तो अभी अभी देखो हमारी जो पॉलिसी है ना वो कंजम्पशन पॉलिसी हो गई है। पहले हमारी पॉलिसी जो थी ना इंडियन पीपल की, वो सेविंग पॉलिसी थी। मतलब क्या है सेविंग पॉलिसी का मतलब क्या है? तो हमारे कंट्री की बात करें तो मैंने अभी बताया वो कंजम्पशन पॉलिसी ज़्यादा है, पहले सेविंग पॉलिसी थी। अभी आपका जो घर का टोटल खर्च देखो तो आपको मालूम पड़ेगा कि एक साइड आपका फूड फूड का कॉस्ट देखो और बाकी का अदर देन फूड का कॉस्ट देखो, कि जिससे फूड के बजाय हम अगर फूड नहीं होगा तो हम अपनी लाइफ मेंटेन नहीं कर सकेंगे। लेकिन ऐसे कई सारे कॉस्ट है, ऐसे कई सारे एक्सपेंसेस है जो अदर देन फूड के हैं, और उसका रेशियो आप अगर कंपेयर करोगे तो बहुत ज़्यादा होगा। तो अभी अभी हमारे कंट्री में क्या है कि ऐसे एक्सपेंसेस बढ़े हैं, लेकिन ऐसी सही कई सारी कंट्री है कि जहाँ ऐसे कोई खर्च ही नहीं होते हैं। तो ये बता रहे हैं कि ड्यू टू द डिफरेंस इन इनकम, अगर आपकी इनकम कम होगी तो आपका एक्सपेंसेस भी कम होगा। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका एक्सपेंसेस भी बढ़ेगा। तो due to the difference in the income and taste and preference of the people, our demand condition of the different nations are the difference. इफ द टू कंट्रीज आर प्रोड्यूसिंग द सेम कमोडिटी, अगर जो कंट्री है, दो कंट्री की बात कर रहे हैं, तो अगर वो दोनों कंट्री सेम प्रोडक्शन करते हैं फिर भी एट द सेम कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, एट द सेम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसकी कॉस्ट भी सेम है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द प्राइस मे बी सेम इन बोथ द कंट्री। लेकिन प्राइस दोनों कंट्री में सेम होगी ऐसा जरूरत नहीं है। सपोज कि हम बात कर रहे हैं तो ए कंट्री और बी कंट्री दोनों में प्रोडक्शन कॉस्ट जो सपोज कि एक प्रोडक्ट है, हम ऐसी बात कर रहे हैं कि शुगर, तो शुगर के प्रोडक्शन कॉस्ट दोनों कंट्री में सपोज कि 15 रुपीज़ है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसकी सेलिंग प्राइस दोनों कंट्री की सेम ही होगी। वो उसके डिमांड पे इफेक्ट करते हैं। अगर वहाँ उस प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है तो वो क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस कम रखेंगे। लेकिन उस प्रोडक्ट की डिमांड वहाँ ज़्यादा है तो वो लोग क्या करेंगे, उसकी सेलिंग प्राइस ज़्यादा रखेंगे। तो इफ द कंट्री हैज़ अ हायर लेवल ऑफ इनकम एंड पीपल हैव अ स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस, एक तो इनकम ज़्यादा है और उसका प्रेफरेंस भी ज़्यादा है फॉर द प्रोडक्ट, इट्स प्राइस मे बी हायर। तो उसकी प्राइस कैसी होगी, हायर होगी, क्योंकि उनकी इनकम ज़्यादा है और उन लोगों को वो पसंद भी बहुत है। कोई भी कीमत पर वो लोग परचेज करने के लिए रेडी होते हैं। तो स्वाभाविक है वहाँ ज़्यादा प्राइस रखेंगे, सेलिंग प्राइस ज़्यादा रखेंगे, उसको हायर प्रॉफिट से बेचेंगे तो भी वो लोग परचेज करने के लिए रेडी होंगे। Thus, the difference in demand condition is result to the price difference, and the price difference gives rise to the international ट्रेड, और ये प्राइस डिफरेंस ही है जो इंटरनेशनल ट्रेड को राइज करते हैं। इन शॉर्ट, इंटरनेशनल ट्रेड टेक प्लेस बिकॉज ऑफ द डिफरेंट इन प्राइसेस एंड प्राइस डिफरेंस अराइज ड्यू टू द डिफरेंस इन सप्लाई कंडीशन।
इंटरनेशनल ट्रेड क्यों होता है? प्राइस के लिए। और प्राइस क्यों अलग 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 होती है? क्योंकि सप्लाई कंडीशन और डिमांड कंडीशन ज़्यादा होती है। तो सप्लाई कंडीशन और डिमांड कंडीशन, सप्लाई के जो प्राइस में डिफरेंस है वो या तो सप्लाई कंडीशन के उसके रीजंस है, इसीलिए प्राइस में, दोनों कंट्री के प्राइस में डिफरेंस है, या तो उसके डिमांड कंडीशन डिफरेंस है, इसीलिए। सपोज कि हम ऐसा बात करें काउ मीट, तो ये काउ मीट है, तो हमारे देश में उसका जो डिमांड है वो बहुत कम है, क्योंकि यहाँ वेजिटेरियन ज़्यादा है और काउ को लोग गॉड का दर्जा दे रखा है। लेकिन इसकी डिमांड फॉरेन में बहुत है, इसीलिए यहाँ से हजारों टन उसका मीट है ना वो एक्सपोर्ट होता है। और इसीलिए ही हमारे यहाँ इसी के कत्ल खाने के लिए आप देखोगे तो उसके कई सारे फैक्ट्री के लॉ बने हैं। अगर आप हिस्ट्री में जाए तो आपको पहचानने के लिए मिलेगा कि पहले जो अंग्रेज आते थे वो लोग तो डुक्कर का, सुअर का मीट खाते थे, वो लोग काऊ का मीट नहीं खाते थे। मीट कोई भी हो वो लोग खाते थे, उसका प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो अपनी कंट्री में तो सुअर का मीट खाते थे। लेकिन उनको क्या लगा कि यहाँ वो लोग जब आए तो यहाँ उनको लॉन्ग टाइम पे रहने के लिए उसको हिंदू एंड मुस्लिम को अलग अलग करने की एक तरकीब सूझी। तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारे कत्ल खाने बनवाए, बहुत सारे कत्ल खाने बनवाए। और ये जो कत्ल खाने हैं, जो जितने भी कत्ल खाने बनवाए हैं, उससे क्या होता है, वो मुस्लिम को उन्होंने सौंप दिए, उसको इंचार्ज मुस्लिम बनाए। अब उसमें प्रॉफिट दिखने लगा। ये अंग्रेजों की बात है, उस समय की बात है, 200-250 साल पहले की बात है। इसका जब आप हिस्ट्री पढ़े या राजवी दीक्षित उसका आप लेक्चर उसके ऊपर सुने तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने किस तरह से हिंदू मुस्लिम में ये जो दरार है वो पैदा की है। तो ऐसे ही ऐसे सब जो है, ये सपोज के बाबरी मस्जिद है तो वो कुछ उसका मायने ही नहीं था, वो उसका उसका कोई ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है। लेकिन ऐसा ऐसा उन लोगों ने किया कि ये लोग हर साल हर वक्त एक दूसरे से भिड़े रहेंगे। तो ऐसे ऐसे वो लोग को पॉइंट छोड़ के गए हैं कि आज भी हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम वाला चल रहा है। तो ये उन लोगों की पॉलिटिक्स थी। तो काउ मीट का यहाँ ऐसा डिमांड ही नहीं है, लेकिन उसका फॉरेन में डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ प्राइस कम है लेकिन फॉरेन में प्राइस बहुत ज़्यादा है। वहाँ वो लोग, वो बहुत जो पैसे वाले होते हैं ना, वही काउ मीट खाते हैं, बाकी तो सुअर का ही मीट खाते हैं। लिव इट, the difference in the demand condition result into the price difference, and the price difference gives rise to the international trade. In short, international trade take place because of difference in the prices, and price difference is due to the difference in supply condition, yeah, due to the difference in demand condition. To explain this, explain the basis of the international trade, let's study the following diagram. ये देखो फॉरेन कंट्री है और ये होम कंट्री है। अगर हम एक साइड देखें, यहाँ एक साइड देखो पहले तो आप, तो ये सप्लाई है और ये डिमांड है, यहाँ सप्लाई और डिमांड है, और यहाँ देखो तो डिमांड एंड सप्लाई है। दोनों का बहुत अच्छी तरह से आप डायग्राम देखो तो आप यहाँ देखोगे तो ये जो डिमांड वाला कर है वो सेम है, एक ही तरह से नीचे जाता है। लेकिन सप्लाई वाला जो कर है ये बहुत ऊपर की तरफ जाता है और ये नीचे की तरफ जाता है। ये देखो, इसका डिफरेंस देखो और इसका डिफरेंस देखो, ड्रॉ करने के सिस्टम देखो। तो यहाँ डिमांड कंडीशन कैसी है, आइडेंटिकल है, लेकिन सप्लाई कंडीशन कैसी है, डिफरेंस है। ये स्टीपर है और ये फ्लैटर है। आपको मालूम होगा फ्लैटर मीन्स थोड़ा बहुत चौड़ा होता है और स्टीपर मीन्स ऊपर जाता है। तो ये स्टीपर है और ये फ्लैटर है। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि इसका जो सप्लाई है और इसका जो सप्लाई है उसमें बहुत सारा डिफरेंस है। तो इसीलिए अब इसकी डिमांड कितनी है और इसके सप्लाई कितने हैं। तो देखो, इतनी डिमांड है और इतना सप्लाई है। डिमांड और सप्लाई एक होते हैं, तो ये होम कंट्री में प्राइस ऑफ होम कंट्री यहां आएगी। अच्छा, प्राइस कब आएगी? तो जहां डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई होगी, इंटरसेक्ट होगा, वहां ही प्राइस आएगी। और ये फॉरेन कंट्री है, उसमें डिमांड और सप्लाई दोनों एक जैसे, बहुत डिमांड नहीं है, बहुत सप्लाई नहीं है, तो उसकी प्राइस यहां आएगी, तो वो प्राइस ऑफ फॉरेन कंट्री। ये पी एफ क्या बताते हैं? प्राइस ऑफ फॉरेन कंट्री। और पी एच क्या बताते हैं? प्राइस ऑफ होम कंट्री। तो होम कंट्री पॉइंट ऑफ व्यू देखो तो यहाँ डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, क्योंकि ये सप्लाई का स्टीपर है। तो फॉरेन कंट्री में ये प्राइस पे मिल रहा है और होम कंट्री में ये प्राइस पे मिल रहा है। समझ में आता है? फिर से देखो, फॉरेन कंट्री की प्राइस ये है। आप नीचे से ऊपर तरफ जाओगे तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से फॉर द एग्जाम्पल 6 रुपीज में मिल रहा है, तो यहाँ कितने रुपीज में मिल रहा है? 4 रुपीज में मिल रहा है। तो जैसे ऊपर तरफ जाओगे वैसे प्राइस कैसी होगी? ज्यादा। तो होम कंट्री की प्राइस ज्यादा है क्योंकि उसमें सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है। अब क्या होगा देखना है। तो अब आपको ये आइडेंटिकल लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ देखना है कि ये प्राइस पे क्या होगा। डिमांड इतनी होगी और सप्लाई इतना होगा। ये डिमांड है और ये सप्लाई है, और यहाँ ये डिमांड है और ये सप्लाई है। तो यहाँ सप्लाई ज़्यादा है, देखो सप्लाई लाइन इधर है और ये डिमांड है, तो डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है, तो इतना उनके पास सरप्लस है। और यहाँ डिमांड ज़्यादा है, देखो ये डिमांड है और ये सप्लाई है, तो डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो उसको यहाँ डेफिसिट है। तो जितना पोर्शन सप्लाई का होगा उतना ही पोर्शन डिमांड का होगा। फिर से आपको मैं बता दूं, ये बहुत क्रिटिकल डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन है। ये होम कंट्री का ये सेम, ये ओ एक्स एक्सिस है, ओ एक्स एक्सिस, और ये ओ वाई एक्सिस। पहले हम ये साइड का हम पहले ये साइड का थिंकिंग करें। तो ये होम कंट्री का है, तो पहले यहाँ हम डायग्राम ड्रॉ करें। तो ये डिमांड है, डिमांड कर ऑलवेज डाउनवर्ड फॉलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग। और सप्लाई कर कैसे होगा? ऑलवेज राइजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, तो यहाँ आप समझ सकते हो। तो समझो, तो सप्लाई का जो कर है वो स्टीपर है। मीन्स स्टीपर का मतलब क्या है? तो सप्लाई धीरे धीरे कम होता है और डिमांड ज़्यादा होती है। देखो ये डिमांड यहाँ 1 2 3 4 5 6 डिमांड ज़्यादा होती है लेकिन सप्लाई कम होता है। तो इससे क्या होगा? आपको यहाँ डिमांड सप्लाई जहाँ इंटरसेक्ट होगा वहाँ आपकी प्राइस होगी। लेकिन फॉरेन कंट्री में डिमांड और सप्लाई दोनों में बहुत अंतर नहीं है, इसीलिए यहाँ डिमांड एंड सप्लाई यहाँ इंटरसेक्ट होता है। तो यहाँ तो स्वाभाविक है कि फॉरेन प्राइस ऑफ होम कंट्री इज मोर देन प्राइस ऑफ फॉरेन कंट्री। अब इन दोनों के बीच में हम एवरेज प्राइस निकालते हैं और यहाँ से लाइन ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे, समझो यहाँ से हम लाइन ड्रॉ करेंगे, तो फॉरेन कंट्री की बात करो। अब फॉरेन कंट्री का आपको समझना है, फॉरेन कंट्री को समझो। तो यहाँ ये जो है वो डिमांड है और ये जो है वो सप्लाई कर को इंटरसेक्ट होता है। तो यहाँ क्या हुआ? डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो ये पोर्शन जो रहा वो डेफिसिट हुआ क्योंकि डिमांड ज़्यादा है। लेकिन यहाँ क्या होगा? ये जो है वो डिमांड है और ये जो है वो सप्लाई है, तो यहाँ
प्रोडक्शन ज़्यादा है तो वो क्या होगा, सरप्लस। लेकिन ये इतना ही सरप्लस होगा जितना यहाँ डेफिसिट है। अगर प्राइस इतना रखोगे तो कितना डिमांड रहेगा और सप्लाई रहेगा, और यहाँ कितना सप्लाई रहेगा और डिमांड रहेगा। स्वाभाविक है, जो प्राइस ऑफ फॉरेन कंट्री है अगर वो बढ़ाओगे तो फॉरेन कंट्री में डिमांड कम हो जाएगी और सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी। तो फॉरेन कंट्री में प्राइस क्या होती है, बढ़ती है। लेकिन यहाँ आप होम कंट्री का देखो तो यहाँ पीएच ये था, ये प्राइस ऑफ होम कंट्री थी। तो फॉरेन कंट्री में तो प्राइस बढ़ती है, ऐसे फॉरेन कंट्री की प्राइस देखो बढ़ती है, लेकिन होम कंट्री की प्राइस कम होती है। तो जब प्राइस कम होगी तो आपको मालूम है तो डिमांड बढ़ेगा और सप्लाई कम होगा। तो यहाँ जितना गैप होगा इतना ही यहाँ गैप होगा। तो यहाँ का जो एक्सपोर्ट है वो यहाँ क्या कर देंगे, इंपोर्ट कर देंगे। तो ये हमने कौन सा बताया, डिमांड कंडीशन आइडेंटिकल है लेकिन सप्लाई कंडीशन डिफरेंस है। तो आइडेंटिकल डिमांड कंडीशंस एंड डिफरेंट इन द सप्लाई कंडीशंस, डिफरेंट इन सप्लाई कंडीशन। अब ये डायग्राम देखो, इससे आपको पता चलेगा। तो यहाँ क्या है, ये होम कंट्री है और ये फॉरेन कंट्री है। तो उसकी डिमांड फ्लैटर है और इसकी डिमांड स्टीपर है। स्टीपर का मतलब कम, फ्लैटर का मतलब ज्यादा। तो यहाँ डिमांड ज्यादा है और यहाँ डिमांड कम है। सप्लाई दोनों का सेम है, सप्लाई कर दोनों का सेम है। तो क्या होगा, तो फॉरेन कंट्री में क्या हुआ, डिमांड कम, सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। और यहाँ क्या हुआ, तो डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल है। तो क्या होगा, तो यहाँ डिमांड एंड सप्लाई फॉरेन कंट्री में यहाँ इंटरसेक्ट होता है तो उसकी प्राइस ये रहेगी। और जो होम कंट्री है उसका डिमांड और सप्लाई दोनों ज्यादा है तो उसकी प्राइस ये रहेगी। तो आप समझ सकते हो ये फॉरेन कंट्री की प्राइस है, ये होम कंट्री की प्राइस है, तो इतनी ज्यादा है। अब उसकी एक एवरेज प्राइस आपने डिसाइड की, समझो ये एवरेज प्राइस आपने डिसाइड की है, समझ लो ये आपने एवरेज प्राइस डिसाइड की। तो ये जो प्राइस डिसाइड करते हो उसका अगर आप ड्रॉ करोगे तो यहाँ क्या होगा, तो इसकी प्राइस एवरेज प्राइस इतनी डिसाइड की है तो प्राइस फॉरेन कंट्री के लिए ये प्राइस बढ़ी, फॉरेन कंट्री के लिए प्राइस बढ़ी। लेकिन होम कंट्री की जो ये प्राइस थी उससे कम हुई, तो प्राइस ऑफ होम कंट्री कम हुई। तो फॉरेन कंट्री की प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होगी और सप्लाई ज़्यादा होगी। तो ये जो है वो सप्लाई है और ये जो है वो डिमांड है। पहले इतनी डिमांड थी, अब इतनी डिमांड हो गई, तो डिमांड कम हुई। यहाँ लाइन ड्रॉ करनी है आपको, OX। तो क्या होगा, यहाँ सप्लाई ज़्यादा हुआ, डिमांड कम हुआ, तो इतना माल एक्सेस हुआ, सरप्लस हुआ। और यहाँ ये उसका सप्लाई है और ये उसकी डिमांड है। पहले डिमांड इतनी थी समझो, अब डिमांड बढ़ी इतनी, ये इतना गैप बढ़ा और सप्लाई इतना गैप कम हुआ। तो ये जो डिफरेंस आया वो इंपोर्ट करने का ज़रूरत महसूस होगी। यहाँ इतना जो कम आया उसको हम इंपोर्ट करेंगे और ये जो इंपोर्ट वाला पोर्शन है वो सेम इसका एक्सपोर्ट वाला पोर्शन होगा। तो दैट इज द पॉइंट। अब सपोज दोनों में चेंज है, यहां देखो हर एक कंट्री का इसका सप्लाई इतना है, ये फ्लैटर है और ये स्टीपर है। इसका डिमांड होम कंट्री का फ्लैटर है और इसका डिमांड इससे कम है, दैट मीन्स स्टीपर है कंपेरेटिवली होम कंट्री। तो क्या होगा, यहाँ डिमांड सप्लाई यहाँ इंटरसेक्ट होता है, यहाँ डिमांड सप्लाई यहाँ इंटरसेक्ट होता है, तो इसकी प्राइस ये है फॉरेन कंट्री की। होम कंट्री की प्राइस जहाँ डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट होगा वो ही प्राइस रखेंगे। तो अब एवरेज प्राइस ये डिसाइड की, तो डिसाइड करोगे तो क्या होगा, वही पॉइंट आएगा।
इतनी डिमांड और इतना सप्लाई, तो सप्लाई इज मोर देन डिमांड, और यहाँ इतना सप्लाई और इतना डिमांड। सर ये कैसे बता सकते हैं कि ये डिमांड है और ये सप्लाई है? तो ये देखो कौन सी लाइन को इंटरसेक्ट होता है, सप्लाई, और ये कौन सी लाइन को इंटरसेक्ट होता है, डिमांड। तो यहाँ डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो इतना उनको डेफिसिट हुआ, इतना उनको डेफिसिट हुआ, इतना उनको सरप्लस हुआ। तो ये जो गैप है ना, वो गैप दोनों का इक्वल आना चाहिए। तो डिफरेंट इन डिमांड एंड डिफरेंट इन सप्लाई कंडीशन। पहले वाला देखा हमने, उसमें क्या था, पहले वाला पॉइंट में क्या था, डिमांड कंडीशन सेम, आइडेंटिकल मीन सेम, सप्लाई कंडीशन डिफरेंट। यहाँ क्या था, सप्लाई कंडीशन सेम, डिमांड कंडीशन डिफरेंट। तीसरे में दोनों इक्वल थे, और चौथा जो आइडेंटिकल डिमांड कंडीशन एंड आइडेंटिकल सप्लाई कंडीशन सेम दोनों साइड पे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये इमेजिनरी है, ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा होता है तो देखो, दोनों का डिमांड सेम, दोनों का सप्लाई कंडीशन सेम, तो दोनों का इंटरसेक्ट यहाँ ही होगा और यहाँ ही होगा, तो दोनों की प्राइस सेम ही होगी। दोनों की प्राइस सेम है तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात ही नहीं होगी, नो ट्रेड बिटवीन देम। और यही उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आप देख सकते हो कि प्राइस इन फॉरेन कंट्री पीएफ इज लोअर देन प्राइस इन होम कंट्री। हर एक पे हम पहले तीन इन द अबाउ फर्स्ट 3 डायग्राम, तो प्राइस ऑफ होम कंट्री ज़्यादा है और प्राइस ऑफ फॉरेन कंट्रीज कम है। क्यों थी? ड्यू टू द डिफरेंट इन सप्लाई कंडीशन, ड्यू टू द डिफरेंस इन डिमांड कंडीशन, ड्यू टू द डिमांड एंड सप्लाई कंडीशन डिफरेंस। ओके, तो क्या होगा, इन ऑल दिस 3 डायग्राम प्राइस इन फॉरेन कंट्री विच इज पीएफ इज lower than price in home country which is PH. So home country will import this commodity from foreign country. Thus the price difference is that which gives rise to the international trade. ये price difference ही है जो international trade को बढ़ावा मिलता है, जो international trade के साथ international trade करने के लिए वो conclusion करता है। Such trade will continue so long as price difference, ये ट्रेड कब तक रहेगा, जब तक प्राइस डिफरेंस नहीं आएगा, तब तक, जब तक प्राइस डिफरेंस रहेगा दोनों देश में तब तक। अगर एक समय ऐसा आया कि दोनों देश की प्राइस डिफरेंस नहीं है, तो दोनों देश में उस प्रोडक्ट के लिए जो ट्रेड था वो बंद हो जाएगा। बट व्हेन द प्राइस difference disappear, there will be no international trade. This is clear from the diagram number 1D, लास्ट में हमने देखा वो। ओके, ये पढ़ लेना है। यहाँ हमारा एक क्वेश्चन खत्म होता है, तो हमारा जो पैम्पलेट है ये, उसमें ये क्वेश्चन यहाँ से, इसमें से आपको तैयार करना है। गुड डे, गुड बाय।